While I was doing PhD, I joined National Board of Examinations. What is the need for the institutions like AIU? Right now we have around 12 to 1300 universities, 50,000 colleges, 10,000 standalone institutions. I believe आज की डेट में हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एट पार टू दी ग्लोबल एजुकेशन। तो इससे पहले जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आई, दे केम इन फ्रेंचाइजी मोड एंड फ्रेंचाइजी मोड वाज नॉट अलाउड। ये इंस्टीट्यूशंस ने जो इंडियन में कैंपसेस लेके आए हैं और इनकी जो एजुकेशन इन देयर प्रीमाइसेस जो इनकी एग्जिस्टिंग कंट्रीज में है, क्या ये सिमिलर है? पहले इट वाज मोस्टली वन वे पार्टनरशिप, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वल पार्टनरशिप्स कि अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे उनके बच्चे भी यहाँ आने चाहिए। आज की डेट पे जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन सिस्टम हमारा चल रहा है, उसमें कोई एक ऐसा गैप जो अभी भी आपको दिखता है कि इस पे शायद काम नहीं हो रहा और हमारे इंस्टीट्यूशन लीडर्स को उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देके उसको रेगुलेशन में लाना चाहिए। व्हाट इज दैट गैप? हाय एवरीवन, वेलकम टू edX टॉक्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मित्तल। शी इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आज हम इनके साथ बात करेंगे अबाउट इंडियन एजुकेशन, ग्लोबल हायर एजुकेशन की लैंडस्केप में हमारी एजुकेशन इन इंडिया जो है वो किस तरीके से है। सो हार्टली वेलकम मैम टू दी शो। थैंक यू वेरी मच। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। आपकी अपनी एजुकेशन, बचपन और आपका करियर जो है वो किस तरीके से हमने लीड किया है और आज हम एक लीडरशिप पोजीशन पे जहाँ एक एजुकेशन पॉलिसी मेकर के लीडरशिप रोल पे हम अपने आप को देख रहे हैं। तो हाउ इज दिस जर्नी बीइंग? So I started my journey with, after schooling I went to Hindu College and did maths honors from there. Okay. And after that I joined Indian Agricultural Research Institute and did my MSc and PhD in statistics from there. And after doing my PhD, rather while I was doing PhD, I joined National Board of Examinations as research officer and then as education officer in University Grants Commission, which has been my parent office. And as education officer, then we were promoted as deputy secretary, joint secretary. Then I went as vice chancellor, or the first regular vice chancellor of a rural women university in Haryana, which is Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. And then I came back to UGC, and then eventually, right now, I am with the Association of Indian Universities as Secretary General. This is the 100-year-old organization, and stalwarts like Sarpalli Dr. Radhakrishnan, Dr. Shyama Mukherjee, they have been the presidents of AIU in the past, and this is the largest university association in the world. Wow, thank you for sharing that, ma'am. सबसे पहले I would want you to share with our audience what is the need for the institutions like AIU and what is the role probably we have to play in the entire education landscape, because जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात करते हैं या बच्चे एडमिशन्स लेने जाते हैं तो एक टर्म आता है UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को देखना। तो probably UGC is still heard over by parents, by children, by educators, but AIU जो है ये बहुत बार पेरेंट्स तक तो शायद एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह नाम पहुंचता ही नहीं है और उनको ये समझ में भी नहीं आता कि ये क्यों है। मतलब बोर्ड समझ में आता है कि CBSE है, IB है, UGC समझ में आता है, पर AIU के लिए क्वेश्चनिंग आती है कि ये कौन सी बॉडी है। तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ AIU? See, AIU was established in 1925. UGC was established on the recommendation of AIU in 1956. Okay. So AIU was much prior to UGC. First thing. Okay. Second thing, that we have a very large higher education system. Right now we have around 12 to 1300 universities, 50,000 colleges, 10,000 standalone institutions. And there is a need to coordinate the activities of all these institutions. So when AIU was established at that time, around 7 universities, they decided that we should come together and form a body which can work as a coordinating agent, especially for equivalence of foreign degrees with the Indian degrees, Indian students wanting to go abroad, foreign students wanting to come to India. But AIU is not a regulatory body. UGC is a regulatory body. So in our country, we have UGC as a regulatory body for higher education, and there are 17 statutory professional councils like
AICTE, National Medical Right. Commission, Architecture Council, Bar Council, Hmm. NCTE. Like this, there are 17 statutory professional councils who look after the work of every professional subject. तो AIU एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जैसे एक माँ हैंड होल्ड करती है अपने बच्चे को, ऐसी AIU हैंड होल्ड करता है यूनिवर्सिटीज़ को। अगर यूनिवर्सिटीज़ को किसी भी तरह की दिक्कत आती है, दे कम टू अस, वी टेक केयर ऑफ इट, हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल UGC ने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस हर यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए, पर उस ऑफिस का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो काम करेगा, क्या उसका साइज़ होगा, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करेगा, कैसे पार्टनरशिप्स करेगा, ये हम उनको सिखाते हैं कि कैसे करें। तो वो बताते हैं क्या करना है, हम बताते हैं कैसे करना है। So that is why AIU is so important. That is why it is existing for 100 years. Right. And we are working, and day by day its work is expanding. And a lot of work we are doing to facilitate the universities in imparting quality education. So Right. they are the regulatory body. हम एक एडवाइजरी बॉडी है, हैंड होल्डिंग बॉडी है, फैसिलिटेटिंग बॉडी है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करते हैं समय समय पे, चाहे वो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हो, चाहे फॉर एग्जांपल अभी AI आ रहा है, तो मास्टर क्लासेस करनी हो AI पे कि कैसे टीचर्स AI को यूज़ करेंगे, या इस तरह के सेंटर्स खोलने हो जहाँ पे टीचर्स को पता चले कि AI को यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब में AIU बहुत ज़्यादा काम। तो इन अ वे हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके दो व्हील्स हैं मेजरली, जो एक डिफाइन करते हैं कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो एक वैलिडेट है और एक तरीके से हमारी वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो ध्यान दे रहे हैं। जैसे UGC शायद अगर सिर्फ करिकुलम ओरिएंटेड चीज़ों को देखता है, एक्रेडिशन देखता है, तो AIU जो है उसकी ओवरऑल होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट को देखता है कि कैसे उसकी डेवलपमेंट मतलब हम हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। Okay. अगर सपोज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकली, वी कैन नॉट ब्रिंग आउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिकॉज हम रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मींस वी आर द वॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। Okay. यूनिवर्सिटीज को क्या लगता है कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए, ये हम उनको बताते हैं। वी डू लाइक एक पूरा साल हमने लगाया ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP के NEP को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सारे जोन्स में 5 जोन्स में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस किया, फिर मेन कॉन्फ्रेंस किया, और फिर गवर्नमेंट के पास भेजा कि हर रिकमेंडेशन के लिए क्या क्या उसके से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, क्या एक्टर ऑफ मतलब रिस्पॉन्सिबल एक्टर फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट रिकमेंडेशन, क्या टाइमलाइंस होंगी। तो हम बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, और वी आर एन एड टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द UGC। Okay. Okay. Thank you for sharing that insight, ma'am. Second, what I wanted to learn is, जब हम आज की डेट में बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, आई बिलीव आज की डेट में हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एट पार टू दी ग्लोबल एजुकेशन। जो अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो वी वर लैकिंग, एंड हम लोग सब देखते थे UK की एजुकेशन सिस्टम, US एजुकेशन सिस्टम की तरफ, और आज की डेट में हमारे पास काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन कोलैबोरेशंस भी हैं। बट जस्ट वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू, क्या ये इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन एंगेजमेंट्स हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं, जो जितना मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दी गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जब हम बात करते हैं, तो क्या AIU उन डायरेक्शंस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ भी कोलैबोरेशंस के लिए वर्क कर रहा है, या किस नज़रिए से हम उस कोलैबोरेशंस को देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। थैंक यू। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन हो, एंड थैंक्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि उन्होंने इस तरह के मौके दिए कि बाहर के इंस्टीट्यूशन यहाँ आके कैंपस लगा सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन बाहर जाके अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ड्यूअल डिग्रीज हो सकती हैं, जॉइंट डिग्रीज हो सकती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, से स्टूडेंट मोबिलिटी हो सकती है, टीचर मोबिलिटी हो सकती है। तो ये हमें NEP ने बहुत सारे मौके दिए, पर क्या हो रहा है मोस्टली कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs या मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर मोर एक्टिव इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और जो हमारी टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मतलब इंटेंट तो है, वो चाहते तो हैं इंटरनेशनलाइजेशन,
पर बहुत बारी उनको पता नहीं होता कि कैसे करना है। दे डोंट नो हाउ टू डू, कैसे कोई अच्छा पार्टनर ढूंढें, कैसे उस पार्टनर के साथ बातचीत करें, कैसे उस पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करें, फिर कैसे उस कोलैबोरेशन को फॉरवर्ड लेके जाएं। तो हमने उसके लिए एक इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बनाया है। ओके और उस नेटवर्क में हम हेल्प करते हैं अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की, नॉट ओनली टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, रादर मोर फॉर टायर 2 टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ जिनका इंटेंट है इंटरनेशनलाइजेशन का, पर उनको ये नहीं पता करना कैसे है। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके लिए अच्छे पार्टनर्स ढूंढते हैं कि कैसे वो अच्छे पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करें, पर खाली पार्टनरशिप मतलब एमओयू साइन करने तक सीमित ना रहे, वो आगे एक एक्टिव पार्टनरशिप की तरह काम करें। Right, and it is two ways, like for student exchange as well as for faculty exchange, if I'm not wrong. No, it is multi-ways, means Okay. student exchange, teacher exchange, semester exchange, curriculum exchange, Right. research partnerships. So हाँ there are जी, many many types of of partnerships which are. ओके और मैम एक बहुत अच्छी आपने अभी बात बताई कि एनईपी ने जैसे हमारे लिए डोर्स ओपन कर दिए फॉर ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम या ग्लोबलाइजेशन सिंस बीइंग इनटू द एजुकेशन सेक्टर यू नो फ्रॉम इयर्स बीइंग कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। तो एक तरीके से जो मेरी नॉलेज है कि बहुत सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी अपना कैंपस इंडिया में एस्टैब्लिश कर लिया है या ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इन 2026 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम, जैसे हमारी मान लीजिए डीकन यूनिवर्सिटी है जो हम वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं, या साउथहैम्पटन है जिसको हम रसल ग्रुप में एक टॉप इंस्टीट्यूशन यूके की मानते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस ने जो इंडियन में कैंपसेस लेके आए हैं और इनकी जो एजुकेशन इन देयर प्रीमाइसेस जो इनकी एग्जिस्टिंग कंट्रीज में है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और इंडियन कैंपसेस में, क्या ये सिमिलर है, क्या ये सेम है, या इंडियन में क्योंकि टाइम आवर्स ज़्यादा होता है, वहाँ का जो टाइम टेन्योर है उनका क्लासेस का वो शायद थोड़ा कम रहता है, तो हमारा इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम कुछ ब्लेंडेड है या इट इज़ द सेम वैनिला प्रोग्राम जो मान लो ऑस्ट्रेलिया और यूके में है वही यहाँ चलेगा? What is the benefit the children are getting here, and what is the value? मतलब is it equivalent value of getting the degree in UK and Australia what they would be having in the Indian campuses? So right now, about 49,000 foreign students are studying in India, Right, and about 8 to 10 lakh students go abroad every year to right. study in foreign universities. बिल्कुल, So there is a big gap. हाँ जी, And these foreign students, these Indian students who are going to the foreign university, they are spending a budget almost equal to the entire higher education budget of India. So if we want to retain those children here, if we can give them the same quality of foreign higher education at the doorstep in India, दो चीजें फायदे होंगी। एक तो उनको सेम एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी, अपने घर पे बैठे हुए मिलेगी, और दूसरा जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो वहाँ बहुत ज्यादा है वो सेव हो यहाँ पे जाएगा, कम कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये रेगुलेशन बनाया था यूजीसी ने या गिफ्ट सिटी का जो डेफिनेट हाँ वर्क जी, का है, हाँ जी, तो ये कहा था कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ अपना कैंपस एस्टैब्लिश करेगी, उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एग्जैक्टली एट पार विद द उनके सिस्टम में रहेगा। अपनी कंट्री में अगर वो Correct. फॉरेन एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी सेम रहेगा, रिकग्निशन सेम रहेगा, तो वो दोनों बिल्कुल एट पार होंगे। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स को तो फायदा ही है कि वो कम पैसे में घर पे रह के फॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरा, जब वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस यहाँ होंगे तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकती हैं। इट विल बी मच इजियर, स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, टीचर एक्सचेंज कर सकते हैं। आई थिंक इट इज बेनिफिशियल इन ऑल टर्म्स। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे टीचर्स वहाँ चले जाएंगे, तो इंडिया इतना बड़ा देश है, करीब 4 करोड़ बच्चे हैं, इतने तो हमारे बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है। राइट, तो अभी तक जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आई हैं 4 करोड़ के अगेंस्ट, उसमें जो बच्चे गए हैं मुश्किल से सारे मिला के भी 200-250 बच्चे गए होंगे। राइट, तो दैट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। I राइट, don't think that should be a very big cause of concern for राइट, our universities. So on the whole, I think foreign education institutions in India will be beneficial not only for the Indian students but also for the Indian institutions. राइट। तो मैम इनका जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं आज की डेट में, जो फॉरेन कैंपसेस इंडिया में है,
आर दे इक्वली क्रेडिटेड? जैसे हमारा इंडियन जो कोलैबोरेशन पार्टनर होता है इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ, 2 years इन इंडिया 2 years अब्रॉड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या 1 year इंडिया 1 year अब्रॉड ऐसे वाले, तो उनमें भी हम यही बोलते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि 1 year उनका लिविंग कॉस्ट बचता है, प्लस वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रहते हैं, तो उनका फी कहीं ना कहीं थोड़ा कंपेंसेशन हो जाता है। तो अगर हम उसको कंपेयर करें विद द होल सोल गोइंग टू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जो कैंपसेस हैं, तो वो एट पार रहेंगे, या उनको यूजीसी की तरह हमारा कुछ एक्रेडिशन मिल रहा है कि उनको इंडिया भी उसी तरीके से वैल्यू करेगा, या ग्लोबल वर्ल्ड उसको एज एन इक्वल वैलिड करेगा? क्योंकि जैसे पहले हम देखते थे कई बार कुछ सैटेलाइट कैंपसेस खुल जाते थे, तो वो सैटेलाइट कैंपस को वर्ल्ड वाइड तो एक्सेप्टेंस मिलता था, लेकिन इंडिया हमें एक्सेप्टेंस नहीं देता था उन डिग्रीज को टेक केयर करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाए या कहीं जाए, तो उसके लिए बाकी का वर्ल्ड ओपन रहता था, इंडिया नहीं ओपन रहता था। बट इन इंस्टीट्यूशंस के साथ में वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट और ओवरऑल जो बॉडीज हैं वो एक्सेप्टेंस इक्वली देंगी, या कैसे है? देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत समय से चल रहा है जी, और बहुत समय से फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आना चाह रही थी, पर वो नहीं आ पा रही थी बिफोर दिस एनईपी से डॉक्यूमेंट जिसने अलाउ किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज को। जी, तो इससे पहले जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आई, दे केम इन फ्रेंचाइजी मोड, एंड फ्रेंचाइजी मोड वाज नॉट अलाउड. So that means it was an invalid degree or illegal campus if it was. right, So therefore it was not allowed. But now that it is a valid thing, now it is allowed. UGC has issued regulations. Gift city regulations are there. So now all these are regular arrangements, or rather I should say valid arrangements. और अब इनकी जो भी डिग्री होगी, और अदर यूजीसी के रेगुलेशन में तो ये भी लिखा हुआ है उनको इक्विवेलेंस ऑफ फॉरेन डिग्रीज विद इंडियन डिग्रीज की भी जरूरत नहीं है. दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू इंडियन डिग्री. And then they are also getting 2 degrees. I mean, if they opt for dual degrees, they get 2 degrees, one from Indian university, one from foreign university. So that is another win-win situation for the student, that during the same time they are getting 2 degrees. Right, and that on a cost-effective way, being at home, not that far off from the family, is approachable. Or a joint degree also they are getting. I mean, some are opting for dual degrees, some are opting for dual. Okay, great. मैम, आपका अगर विजन पूछूं या आपके नजरिया से आने वाले 5 साल 10 साल इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को आप कहाँ देखते हैं? Indian higher education system is now a sought after system. For the first time I am seeing कि से यूके का, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पहले हम चाहते थे उनके साथ कोलैबोरेशन हो, अब वो भी चाहते हैं बिल्कुल. एंड वी आर टॉकिंग ऑफ नाउ इक्वल पार्टनरशिप्स. पहले इट वाज मोस्टली वन वे पार्टनरशिप, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वल पार्टनरशिप्स कि अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनके बच्चे भी यहाँ आने चाहिए. Right. So I see a very very bright future, especially after this National Education Policy 2020, because it is a very very inclusive and student oriented policy जिसमें इतनी flexibility दी गई है बच्चों को कि they can almost design their own degree. Right. So मुझे लगता है कि Indian higher education जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है. It will be a sought after system, and that will be one of the futures of the world higher education system. ट्रू, बिल्कुल सही बोला मैम. और बहुत मेहनत के साथ एडुकेटर्स की आई बिलीव और विजन रखने वाले जो विजनरीज हैं, जिन्होंने एफर्ट्स डाला है, आज हम इस तरीके की ट्रांजिशन देख पा रहे हैं कि एनईपी के बाद भी, मतलब एनईपी आया था तो तब भी सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन पे सबको डाउट था कितना होगा, कैसे होगा. लेकिन विद द विजनरी लीडर्स वी हैव इन दिस सिस्टम, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स भी इसको अडेप्ट करेंगे और इसका रिजल्ट वही होगा जो हम देखना चाह रहे हैं अपनी कंट्री के लिए. मैम, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. जब हम अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आप तो सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में लीडरशिप रोल पे, पॉलिसी मेकिंग पे, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन पे इन्वॉल्व है बहुत क्लोजली. प्लस आपने वर्ल्ड वाइड बहुत सारा ट्रैवल किया है इंस्टीट्यूशंस में, यूके, यूएस, कनाडा, व्हाटएवर, मतलब यू नेम इट, एंड यू हैव ऑलरेडी बीन देयर इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. आपको ग्लोबल एजुकेशन ओवरऑल और आज की डेट पे जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन सिस्टम हमारा चल रहा है, उसमें कोई एक ऐसा गैप जो अभी भी आपको दिखता है कि इस पे शायद काम नहीं हो रहा और हमारे इंस्टीट्यूशन लीडर्स को उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देके उसको एक रेगुलेशन में लाना चाहिए? व्हाट इज दैट गैप? आई थिंक हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस पे.
so that our graduates are employable, and they, as soon as they come out of the institution, they are employable. Sometimes our graduates are lacking the employability skills. So employability has become a bigger issue than unemployment. So I think if we can pay more attention to say curriculum changes very fast, so that because the technology is changing very fast, so how can we update the curriculum very fast? How can we change the pedagogy techniques in such a manner that the emphasis is not on rote learning but on teaching learning, and how we can adopt technology, and lastly how to have a university industry linkages to impart skill education to the students, because skilled students will be employable. Skilling is very very राइट सो जैसे हमारी अभी ऑलरेडी हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटीज और कुछ और स्किल यूनिवर्सिटीज आई हैं अंडर द सिमिलर गाइडलाइन आल्सो skill universities which are imparting skill education. Every student in every university should be skilled. Very it's right, not only said. for skilling universities, right, because every student should be had. That's why 4-year degree program was introduced, so that the skilling is introduced at every level. राइट गॉट इट. एंड इवन आई बिलीव मैम 4 ईयर के साथ हमारा जो रिसर्च पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत सालों तक कहीं ना कहीं एक लैक कर रहा था, वो भी इंक्रीज होगा, विच विल एनफोर्स द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ओवरऑल. हमारे बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी एजुकेशन में. क्या हमारे जो इंडस्ट्री लिंकेजेस की आपने बात करी, जहाँ यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, क्या वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज या बाहर की जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को देख रही हैं, या मतलब इंडियन फ्रेशर्स को देख रही हैं अगर मैं बोलूँ, या क्वालिफाइड बच्चों को देख रही हैं? हाउ डू यू सी द एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड टू दीज चिल्ड्रन वुड ग्रो नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन आउटसाइड इंडिया? So that is what I am saying. Employability right now is not very good, except for very good institutions जिनके अच्छे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं. टोटल अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट वेरी गुड. राइट. सो एम्प्लॉयबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए ही हमें स्किलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. हमें किस तरीके से उनको कराई जा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और बच्चों को खुद को अपनी स्किलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट पे जो से कंटेंट है दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. A lot of content is there. The students have to be self-aware that they have to learn, because unless they learn, degrees are not going to matter in future. What is going to matter is what you have learned. So learning is very important, and thankfully now there are a lot of opportunities to learn, so they should concentrate on learning. मैम एक मैसेज हमारे यंगस्टर स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे, और एक मैसेज हमारे एजुकेटर्स के लिए, लीडर्स के लिए, कि उनको किस तरीके से अपना जर्नी आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? So the message would be that the times are changing very fast, technology is changing very fast. So whatever you learn today will be obsolete tomorrow. Therefore, it has to be a lifelong learning. Your learning will not stop with the institution or the program you are studying in. It has to be a lifelong learning. Rather, you should learn how to learn. So if you know how to learn, learning will be always lifelong. That is my message, that don't stop learning, keep learning always. Thank you so much for sharing this time and information with our parents and children. I believe हमारी जो ऑडियंस है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत वैल्यू एडिशन कन्वर्सेशन रहा होगा, क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही मालूम पड़ता है मैम जितना यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स उनको अपने बारे में बताते हैं. और एडेक्स टीवी हमेशा इस कोशिश में रहता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हों उन एक्सपर्ट्स की, उन लीडर्स की, जिनके साथ में हम ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए ऑडियंस के लिए, कि जेन्युइनली जब आपको देखना है, अपनी इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन करना है, तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, और उनके पीछे जो उनकी बॉडीज हैं, जो उनको एक्रेडिटेशन देती हैं, जो उनको वैलिडेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, तो उसके साथ में वो अपने आप में किस तरीके से हॉलिस्टिकली डेवलप करके अपने लिए करियर पाथवेज आगे बना सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम एंड प्लेजर हैविंग यू मैम ऑन एडेक्स टीवी. आई बिलीव सबने ये बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन सुना होगा और बहुत वैल्यूएबल हमारी कॉन्वर्सेशन थी. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.